explain prime factorization again? Okay. I'm little bit confused. Okay. I am briefing prime factorization once again. Then we will move to the next topic. Kindly mute yourself, everyone, and see on the board. Prime factorization. Prime factorization means we have to find out all the prime factors of the given number, right? So suppose we are taking 105, 105 we are taking, and we have to find out its prime factors. So we will divide at every step by prime number. 105, here we are having 5 at the end. So this number will go with 5. 5 into 2 makes 10. 5 ones are 5. We got 21. Now 21 comes in the table of 3 and 7 both. And both are prime numbers. So it is our choice. First we divide by 3 or by 7. So I am dividing first by 3. 3 into 7 gives 21. And 7 into 1 gives 7. So here our work is done. So the prime factors are 5 into 3 into 7. This is our answer. Now it is clear? Ma'am, may you explain? Yes, ma'am. Okay. I am telling one more example. So it will be little bit more clear to everyone. Okay. So we will take number 216. Suppose we have to find out the prime factors of 200. No, this number we have done earlier. So I will take some different number. Suppose we have to find out the prime factors of 176. Now we all can see 176 is an even number. So it will be divided by 2. 2 into 8 gives 16. Then 2 into 8 gives 16. Again, 88 is a even number. So again it will go by 2. 2 into 4 gives 8. 2 into 4 gives 8. Now again 44 is a even number. Again it will go by 2. 2 into 2 gives 4. And 2 into 2 gives 4. Again it will go by 2. 2 into 1 equals to 2. 2 into 1 equals to 2. Now 11. 11 is a prime number. So we will divide it by 11 only. 11 into 1 gives us 11. So here we are done with the prime factorization of 176. Now we will write the prime factors. They are 4 times 2 and 11. 2 into 2 into 2 into 2 into 11. Now it is clear to everyone? Excuse me, query. हाँ पूछिए क्या क्वेरी आपकी? मैम ये जो लास्ट में 11 नंबर आया है, अगर हम 11 को वापस 11 से डिवाइड नहीं भी करेंगे तो चलेगा? No, you have to divide in the end. ओके मैम. हाँ जी. और कोई क्वेरी किसी की? हाँ जी. मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको 2 से ही डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना है? नहीं जी, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो प्राइम नंबर से करना है. आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो 176 एक इवन नंबर है तो मैंने उसे 2 से डिवाइड किया. अगेन 88 एक इवन नंबर है, मैंने उसे 2 से डिवाइड किया. 44 एक इवन नंबर है तो मैंने उसे 2 से डिवाइड किया. Then 22 again is an even number. That's why I have divided it by 2. Now 11. 11 is a prime number. It will go in the table of itself. So मैंने 11 से डिवाइड किया. It depends. जब मैंने 105 को किया था तब आपने देखा था ज़ारा what I have done in that. What ma'am? 105 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया था आपने देखा था? हाँ मैम. तो वहां बेटा मैंने 2 से डिवाइड किया था. 105 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया, आई टोल्ड
ones place digit is 5, so it will comes in the table of 5. So we have divided it by 5. 5 into 2, 10. 5 was the 5. Now 21 comes in the table of 3 and 7 both. तो मैंने पहले 3 ले लिया. 3 into 7 gives us 21. Now 7 into 1 gives us 7. So it is not compulsory कि we have to divide by 2 always. We have to use prime numbers. वो तो depend करता है ना कि number कौन सा है. Okay, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Okay. So today we will move to common factors. I hope you all know about common factors. Yes, ma'am. Ma'am. What is the meaning of common factor? Who will tell? कौन बताएगा मुझे common factor क्या होता है? You have to just raise your hand. I will ask myself. You have to just raise your hand. I will ask myself what is the meaning of common factor. Kritarth has raised his hand. And rest no one knows about common factors. जिनके कैमरा वीडियोस बंद है काइंडली अपने वीडियो ऑन कीजिए if you don't have any issue in network. Ma'am, I also raised the hand. बेटा who is saying? काइंडली Ma'am, नाम बोलो अपना. Ma'am, नाम बोलो Aisha. बेटा. आयशा. ओके. हाँ जी आयशा बताइए. Ma'am, common factors are factors which are in the same tables and have like same factors. कॉमन फैक्टर्स एक बार Are दोबारा like- बताइए. Ma'am, shall I tell? Are factors which are in the same table and have the same factor. हाँ जी कृतार्थ आप बताओ. व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स बेटा? मैम कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो दो नंबर के फैक्टर्स होते हैं उनकी सेम फैक्टर्स को कॉमन फैक्टर्स कहते हैं. हाँ जी उनके सेम फैक्टर्स को कॉमन फैक्टर्स कहते हैं. अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल्स. ठीक है. कॉमन फैक्टर्स. Suppose we are given two numbers, one is 35 and one is 98. And we have to find out the common factors of these two numbers. So what we will do, first we will write the factors of 35 and then we will write the factors of 98. Then we will find out the common factors. Okay? 35 के factors निकालिए जल्दी से और मुझे बताइए क्या क्या होंगे. Fast. Ma'am, done. Ma'am, done. हाँ जी, what are the factors of 35? Ma'am, factors of 35 are 5 and 7. हाँ जी. Not appropriate answer. The factors of 35 is 1 multiplied by 35 and 5 multiplied by 7. Yes, ma'am. 1 multiplied by 35 and 5 multiplied by 7. So factors are, I am writing here, 1 into 5 into, no, sorry, we will not do into comma, sorry. 1, comma 5, comma 7, comma 35. Now find out the factors of 98 fast. आयशा करो बेटा. Ma'am, can I tell? हाँ जी बताओ. I'm done. Ma'am, 1, 5, 19 and 95. 95 बेटा नंबर इज 98. Okay, ma'am. आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, आप ऐसे फैक्टर्स लिख के भी निकाल सकते हो, सिंपली फैक्टर्स लिख के भी. Ma'am, हाँ जी I'm done. डन. हाँ जी बताओ क्या फैक्टर्स होंगे.
So the factors will be for 98 will be 2, 7, 14, Hmm. 18, 49, 98 and 32 also. It's all down 98. Ma'am, can I tell? Yes, sure, beta. You can tell. Batao. 1, 2, 7, 14, 18, 49, 32 and 98. 1, 2. बोलो बेटा. 1, 2. 7, Hmm. 14, 18, 49, 32 and 98. 18 होगा बेटा फैक्टर. हाँ जी, 18 will be the factor. No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can I tell? हाँ जी, बताइए. मैम 98 के बनेंगे 1, 2, 49, 98, 14 and 7. And the common factors will be 1 and 7. कॉमन फैक्टर विल बी, चलो 1 तो होता ही है कृतार, क्योंकि 1 के तो सारे नंबर्स होते हैं ना मल्टीपल. Yes, ma'am. मैम हाँ. दूसरे 7 होगा 7. 7 होगा. हाँ जी, और सबके आंसर्स गुड कृतार. मैम ये लास्ट नंबर 3 है खाली. मैम कैन आई से? नहीं, मैं रुक गई थी लिखते लिखते, क्योंकि 18 जब बोला था ना तो आई स्टॉप देयर. मैम कैन आई से? हाँ जी, बोलो जी. मैम 1, 2, 7, 14, 49, 32 and 98. हाँ जी, एक बार निकाल लेते हैं. कुछ बच्चे अभी भी साइलेंट हैं. 1 के टेबल में आता है 98, देन 98 इवन नंबर है. 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आएगा. तो बताओ जल्दी से, डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखाए थे मैंने. Will 98 come in the table of 3, No, ma'am. No, ma'am. 4, No, No. ma'am. Yes, ma'am. 5, 6, No, No, 7. ma'am. Yes, ma'am. 7 1s are 7, 7 4s are 28. 8 के टेबल में आएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, बताओ जी, कौन कह रहा है 8 के टेबल में आएगा? काइंडली मुझे एक्सप्लेन करो कैसे. No, ma'am. हाँ मैम जी. आएगा ही नहीं. आएगा ही नहीं. यस, यू आर राइट. अच्छा जी, 9 के टेबल में आएगा. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. नो. नहीं आएगा. 10 नहीं आएगा. 10 के टेबल में आएगा. No, ma'am. No, ma'am. तो क्या 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 हुए इसके फैक्टर्स लिखे एक बार. 1, 2, 7, 14, then 49, then 98. ये हो गए हमारे 98 के फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? Ma'am, 1 or 7. Ma'am, 1 ही लिखते हैं बेटा. बेटा वी डोंट राइट 1 बिकॉज 1 के तो सारे नंबर ही मल्टीपल होते हैं ना, तो वी डोंट कंसिडर 1 इन दैट. कॉमन फैक्टर इज 7. ma'am, but in our school the teachers ki we need to circle the 1 also. ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. अगर बोलते हैं तो आप लिख सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल. 7 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 98. अब एक क्वेश्चन दूं, जल्दी से करके दिखाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज सबने लंच नहीं किया या इवनिंग स्नैक्स नहीं लिया? एनर्जी बड़ी लो है सबकी, क्या चक्कर है? मैम आपकी एनर्जी लो होगी ना तो मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में. मुझे मजा तब आता है जब आप लोग जोश के साथ मुझे जवाब देते हो. Ma'am, ठीक है, क्वेश्चन पूछो. Ma'am. पूछो क्वेश्चन. चलो चलो जल्दी से. हाँ जी, हाँ जी. मैम हम लोग मल्टीप्लाइंग मेंटल डिवीजन करेंगे. मेंटल डिवीजन कराऊंगी. चलो, यू वांट टू लर्न मेंटल डिवीजन? मैम आई सॉ योर Sure. वीडियो. इट्स वेरी इजी.
हाँ श्योर आई विल टीच। अब जल्दी से मुझे 24 और 90 के बताओ कॉमन फैक्टर्स। 24 एंड 90। मैम 90 और 190। रुको रुको रुको, लिखती हूँ 24 90। जल्दी से निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स 24 एंड 90 के। Done, ma'am. डन। जल्दी से करिए सब, फिर हम आंसर टैली करेंगे। Done, ma'am. गुड गुड, टू फास्ट। Done, ma'am. हो गए, टैली करें और शुड आई वेट? Yes, ma'am. Done. ओके जी। 1 minute. हाँ, ओके जी ओके जी। हाँ जी, किस किस के हो गए? हु हैज डन? आई वांट टू सी देयर फेसेस। हेशा, हेशा 24 के फैक्टर्स बताओ क्या क्या है। 1, 2, 4, 8, 3, 12 and 24 itself. बेटा राइट इट इन सीक्वेंस, ऑलवेज राइट द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जिस मेथड से मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया फैक्टर्स, वहां से तो ऐसे उल्टे पुल्टे आ ही नहीं सकते फैक्टर्स। ठीक करो इनको, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। Okay, ma'am. और किसका हो गया? त्रिशा, त्रिशा टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 96 बेटा। त्रिशा अनम्यूट करो बच्चे। यू नो हाउ टू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, ma'am. हाँ बताओ बेटा, क्या फैक्टर्स आए 96 के? 1, 2, या 3, 5, 6, 5। 9, वेट ओके 10, 15, त्रिशा 18 वेट। and 30. त्रिशा यू नो द डिविजिबिलिटी रूल्स? Yes, ma'am. 5 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं मुझे बता सकते हो? विच नंबर्स कम्स इन द टेबल ऑफ 5? कौन से नंबर आते हैं बेटा, एक बार मुझे बताओ सर, आई वांट टू नो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. आपने बोला कि 96 का जो फैक्टर है वो 5 है। कैसे हो सकता है बेटा? जब 96 के वंस प्लेस पे तो 6 है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वी वांट 0 और 5 एट द वंस प्लेस नंबर, so how it will be divisible by 5? Who will tell the factors of 96? Yes, ma'am. हाँ जी, who said yes? Kindly अपना नाम बोलो प्लीज। Ma'am, 1, 2, 3. बच्चे एक बार नाम बोलोगे तो मैं देखूंगी। करमनवीर, करमनवीर यू आर टेलिंग? बेटा Ma'am, म्यूट 1, करो बाकी सब। हाँ जी 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96. गुड। नाउ who will tell the common factors? Raise your hand.
Who will tell the common factors? Oh, sorry, I have given, wait. There is some confusion with me. Sorry, the number is 90 and I am thinking of 96. Those who have done with 96, उनका आंसर भी मिलवाते हैं, और जिन्होंने 90 के साथ किया उनका भी. सॉरी त्रिशा बेटा, I forgot the number totally. Okay? अभी मैं चेक कराती हूँ आपका आंसर भी. ठीक है, सबसे पहले आप 24 और 96 के मैच कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, फिर हम मैच करेंगे 24 और 90 के. ओके, हाँ जी, कौन बताएगा 24 एंड 96 से फैक्टर्स कॉमन? हु विल टेल? मैम हाँ जी, मैम पहले तो कौन बोला? मैम एक बार करना नाम कर. हाँ, कर्णवीर बताओ बेटा. 2 3 4 6 हम्म, 12 24 2 3 4 6 12 24. Very good. Now we will. जसपाल जी म्यूट कीजिए, बहुत बच्चे अनम्यूट है, बहुत शोर हो रहा है. हाँ जी, अब हम मैच करेंगे 24 एंड 90 के. त्रिशा एक बार 90 के फैक्टर्स फिर से बताओ बेटा. Yes, ma'am. हाँ जी. 1, 2, हम्म 3, हम्म 5, या 6, यस 9, यस 10, यस 15, 18, यस 30, and 90. या वेरी गुड बेटा. नाउ हु विल टेल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 90? मैम आरव. Yes, ma'am. आरव बताओ. so the common factors of 24 and 90 are 2 3 and 6 2 3 and 6. Very good, it is right. Now you are clear with the common factor concept, or should I give one more example to do? I'm clear More example. ओके, चलो एक और कर लेते हैं. अब थोड़े से बिगर नंबर्स ले. कर yes लोगे? Yes. ओके, नाउ वी विल टेक 118 and 156. चलो फाइंड आउट करते हैं 118 एंड 156 के फैक्टर्स. 100. हाँ जी, करिए स्टार्ट जल्दी से. हाँ जी, डन. No, ma'am. ओके जी, जल्दी करिए. Done, ma'am. डन. I'm almost done. शालिनी, हैव यू डन? शालिनी तिवारी बेटा, एक तो अपने नाम Yes, से ma'am. ज्वाइन किया करो. व्हाट्स योर नेम बेटा? Ma'am, Divisha. देविशा. देविशा, हैव यू डन? Yes, ma'am, I'm trying. ओके. जीविका, हैव यू डन? Ma'am, almost. ओके, डू फास्ट. दक्ष, आपने कर लिया?
इनाया, मायरा, Yes, ma'am, almost done. okay, do fast. ज़ारा, आपने कर लिया बेटा? Yes, ma'am. Tell me the factors of 118. मैम मेरा एक्चुअली थोड़ा सा गलत हुआ है, इसलिए मैं चेक कर मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इसलिए। अच्छा, करो बेटा, करो। Akash, have you done? Kirat, I'm almost done. Kirat, आपका हो गया बेटा? No, ma'am. Then बेटा, why you are sitting idle? Do fast. जिगर, आपने कर लिया? Ma'am, 1 minute. ओके बेटा, ये लिनोवो, आपने अपना नाम अभी भी ठीक ही किया बेटा। व्हाट्स योर नेम? जिनके नाम पे लिखा है लिनोवो टैब M10, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. व्हाट्स योर नेम बेटा? Aryan. आर्यन बेटा, इसको ठीक कर लिया करो। आपने लिनोवो Yes. लिखा हुआ है, मुझे आपका नाम नहीं पता लगता। हैव यू डन? Ma'am, I'm just doing last one only left. ओके, जल्दी से करो। अंशरा, श्रेयांशी, श्रेयांशी, वाई और कैमरा इज ऑफ बेटा। Yes, ma'am. श्रेयांशी, आपका कैमरा ऑफ क्यों है बेटे? Ma'am, network issue, ma'am. ओके, आपने कर लिया बेटा? Yes, ma'am. ओके, टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 118. Ma'am, 1, 2, 59 and 118. Very good. Now tell me the factors of 156. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 78 and 156. Very good. How many are left? तो श्रेयांशी, ये बताओ इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हुए बेटा? What is common between 118 and 156? Ma'am, 2. Good. Should I tell it on board if there is any confusion? Yes, ma'am. Can you please tell? It's confusion. Yes, तो बेटा फिर आप बोलो, why you are wasting your time? confusion. हाँ, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, बोला करो बेटा जल्दी जल्दी। जब आपने ट्राई किया नहीं हो रहा, से मैम टेल बस, आई विल टेल। ले लेते हैं 118। 118 1 के टेबल में आता है, राइट? जवाब दो मुझे साथ साथ। Yes, ma'am. अच्छा, अब ये इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल में भी आएगा, तो 2 से चेक करते हैं। Yes, ma'am. 2 5s are 10 and 2 9s are 80। ठीक है? Yes, ma'am. अब 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा। अच्छा, 6 के टेबल में आएगा, बताओ? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, हु सेड यस? एक बार मैं उनका व्यू लेना चाहूंगी। हु सेड यस आएगा? बताओ बेटा, घबराओ मत, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी ना। हु सेड यस आएगा, तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। अच्छा, हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, क्या होगा?
Ma'am, you told that. Ma'am, it should be divisible यहाँ पे वो by नंबर 2 2 and और डिविजिबल हो रहा है, 3. तो वो 6 से भी हो जाएगा. 3. Ma'am, ठीक, if the number is देखो, divisible. हाँ, अब 6 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो 2 और 3 दोनों से होते हैं. अब यहाँ जब मैंने स्टार्ट किया तो आई सेड 2 के टेबल में आएगा, पर 3 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि द सम ऑफ डिजिट्स इज 10. तो 6 के टेबल में तो आएगा ही नहीं. 6 के टेबल में तो वही नंबर्स आएंगे जो 2 एंड 3 दोनों में आएंगे, राइट? तो फॉर 6 इट इज नो. अच्छा, 7 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा. No, ma'am. 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा. चलो, हो गए इसके फैक्टर्स, लिख लेते हैं. हाँ जी, बोलेंगे सब, क्या है इसके फैक्टर्स? 1, 2, 20. अब निकालते हैं 156 के फैक्टर्स. ठीक है, 156, 1 into 156. अच्छा, अब ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में भी आएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 2 ma'am. into 2 sevens are 14 and 2 eights are 60. अच्छा, 3 के टेबल में आएगा? जल्दी से बताओ मुझे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 के टेबल में भी आएगा. 3 fives are and 3 twos are. 4 के टेबल में आएगा? Yes, ma'am. जल्दी से बोलो. Yes, ma'am. 4 के टेबल में कितने पर आएगा? कुछ बता सकते हैं? 4 multiplied by 39. 4 multiplied by 39. Who said this? Ma'am, Kritarth. Very good, Kritarth. अब बताओ, ये 5 के टेबल में आएगा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. 6. No, ma'am. No, ma'am. Yes, Yes, ma'am. It will come. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 6 के टेबल में आएगा. हाँ, हाँ, कितने पर आएगा 6 के टेबल में? 26. 26. I'm 26. 20. Good. हाँ जी. 7, No, ma'am. No, ma'am. 8, No, ma'am. No. 9, No, ma'am. No, ma'am. 10, No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. 11. No, ma'am. No, ma'am. No, It ma'am. will comes in the table of 12 because it is little bit big number, na? 12 into 13 gives us 156. So here we are done with the factors of 156. So जल्दी से बोर्ड पे देख के पढ़ो 156 के क्या क्या फैक्टर्स हैं. 1, 2, Ma'am, 1, 2, 3, 6, 4, 12, 13, 26. 26, 1, 2, 3, 4, 70, 150. 39, 52, 78 और 156. 12. ठीक है. अब बताओ कॉमन क्या होगा? Ma'am, What will be? Ma'am, 2. 2 is the common factor between 118 and 156. Now, is it clear or there is any doubt? Ma'am, clear. ठीक है जी. अब बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे होमवर्क में. We are moving to now next topic, that is highest common factor. Generally we say it HCF. Ma'am, Okay. में आपको मतलब आप क्वेश्चन क्या मतलब आप ग्रुप पे सेंड करोगे क्या प्लीज? हाँ हाँ, ग्रुप में सेंड करूंगी बेटा कॉमन फैक्टर्स के क्वेश्चंस. ओके. ओके हाँ मैम. जी. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हु विल टेल? Ma'am, हाईएस्ट कॉमन. it is the highest number in the factors. The common factor is the highest number. गुड आयशा. हाँ जी, और कौन कह रहा है? मैं बताऊं? Who want to tell? Sargi, you know what is highest common factor? Ma'am, can I? हाँ, बोलो आयशा. Ma'am, highest common factors are which are the same ones and who are the top ones. Like when you have sometime on your second first. जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें जो. हाँ जी.
बताओ जी बताओ। Ma'am, the श्योर। greatest number divides two or more numbers exactly without leaving another number is called highest common factor. गुड। बेटा आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता सकते हो? इट इज जस्ट लाइक अ डेफिनेशन ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या उसका? क्या मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का? Ma'am, simply we have to like we have a number 118. We have only have to take a factor to the common factor and take out one highest common factor. Ma'am, ma'am, the common factor which is the highest amongst them, all the common factors, and it divides the both the numbers completely without leaving out. हाईएस्ट। हाँ जी बताओ बताओ। Ma'am, there are 4 methods in HCF. Can I name them? बेटा फर्स्ट टेल मी व्हाट इज एचसीएफ, आफ्टर दैट वी विल श्योरली टॉक अबाउट। Ma'am, हाँ shall I? हु सेड मैं बताऊं? हाँ बताओ जी, कौन बताएगा? नाम बोल दो बेटा एक बार, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी आपके पास। सोहन। हाँ जी सोहन बताइए। यस मैम। मैम, जब हम एक नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं और उसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो HCF होता है। हाँ highest जी, common जो हाईएस्ट जो जब हम फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं बिटवीन टू और मोर देन टू नंबर्स, द हाईएस्ट फैक्टर इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसको बहुत एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? मैम मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोल सकते हो बेटा, बोलो। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो the largest number of the common factor of 2 or more numbers is called the highest common factor, or its short form is HCF of Yes. the number. Yes. Now we are taking 24 and 96. We have to find its HCF. Means we have to find out, अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के 2-3 वेज हैं। वी विल टॉक अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो जल्दी से सब इसको निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालो जल्दी से। प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो, कॉमन फैक्टर से भी कर सकते हो, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। बताओ पहले कौन सा मेथड करेंगे? Prime. मैम, डिवीजन। Ma'am, prime factorization. Ma'am, prime factorization. डिवीजन। Prime factorization. चलो जी, प्राइम division. फैक्टर्स दोनों से करते हैं। जल्दी से प्राइम फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे। Ma'am, please listing factors. And can I tell the prime factors of 24? Yes, sure, you can tell बेटा। Ma'am, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. अच्छा जी, अब 96 के मुझे कौन बताने वाला है? मैम हाँ जी मैम, to 2 हाँ बेटा, into 2 into 2 into 2 into 3. हाँ जी 2 into 2 into 2 into 3। मैम 96 के फैक्टर्स हैं ये। मैम, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. राइट, एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं। बोर्ड की साइड में, हाँ बोर्ड पे देख लेते हैं जल्दी से। 24 के होंगे 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। हाँ जी, अब 96 के करते हैं। मैम आप बाद में डिवीजन मेथड भी सिखाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी। ओके मैम। हाँ जी 96, 2 48 then 2 into 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3, 3 into 1। ठीक है जी, ये हो गए दोनों के
प्राइम फैक्टर्स। अब क्या करना है हमने, अब देखो, स्पेस इज लेस, आई हैव रिटन टू बिगर, चलो यहाँ पे बताती हूँ। हाँ जी, अब 24 के बताएंगे प्राइम फैक्टर्स, बोलेंगे सब बच्चे एक साथ। 2 हम्म 3 times 2 multiplied by 3 multiplied by 3 into 3. हाँ हाँ जी, 96 के बोलेंगे जल्दी से अब। 2 into 2 into 2 into 3 into 3. multiply by 2 multiply by 3 हाँ जी, अब निकालते हैं इसका HCF, राइट? 4 2 3 6 2 2 2 2 2 and 3। तो HCF क्या हो गया, जल्दी से सब बोलेंगे एक साथ। 2 Multiply. सुनो सुनो सुनो, अब हमने इन दोनों का कॉमन करके एक 2 लेना है, देन मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का कॉमन, फिर एक 2, फिर इन दोनों का कॉमन एक 2, देन फिर इन दोनों का कॉमन एक 3। तो अब जल्दी से HCF बताओ क्या होगा। 24 24 क्या ये समझ में आया सबको? Ma'am, I still don't get it. मैम मुझे भी सब Ma'am got it. मुझे भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, दोबारा से कर लेंगे। चलो अब एक नए नंबर के साथ हम ट्राई करते हैं। सपोज वी हैव 45 and 25 and we have to find the highest common factor, means ऐसा कौन सा नंबर होगा सबसे बड़ा जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे, राइट? तो हमने क्या करना है, हमने निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स, बिकॉज वी आर लर्निंग एट प्रेजेंट HCF by प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? हाँ जी, 25 के प्राइम फैक्टर्स बताओ जल्दी से। मैम 5 5 मैम 5 into 5 5 into 5, राइट? अब कर लेते हैं 45 के जल्दी से। हाँ जी, 5 multiply by 2 times 3 9 मैम 3 into 9 ठीक है जी, प्राइम फैक्टर्स तो सबको समझ आ गए। अब HCF बताओ इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। excuse me ma'am हाँ जी बेटा, ma'am in 45 you have multiply by 5 first you not multiply by 3 because it's going बेटा इट्स योर चॉइस। वैसे जो स्कूल्स में सिखाया जाता है, दे ऑलवेज सेड कि सबसे स्मॉलर नंबर से डिवाइड कीजिए, बट Yes, एक्चुअली इट इज दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर। आपको, मुझे 5 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम से माइंड में आ गया तो मैंने 5 से कर दिया, आप 3 से भी कर सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। योर आंसर विल बी करेक्ट, आइदर आप इसको 3 से चलाइए, हाँ आपने इसको डिवाइड प्राइम नंबर से करना है। आपको ये चीज याद रखनी है कि आप प्राइम नंबर यूज करेंगे। अब जैसे 15 3 भी 45 होता है, बट वी कांट यूज हियर 15, दैट विल बी रॉन्ग। लेकिन अगर ये 5 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो इट्स योर चॉइस कंप्लीटली कि आप इसे पहले 5 से डिवाइड करना चाहते हो या इसे पहले 3 से करना चाहते हो। इज इट क्लियर? yes ma'am अब हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25. It will be 5 multiplied by 5. Am I right? yes ma'am yes ma'am Now prime factors of 45. It 5 is 5 into 3 into 3. into 3 So what is the HCF here? ma'am 5 Ma'am 5 into 5, which is 25. ठीक है, अब मैं इसमें, हाँ जी बेटा, मैम वो हम लोग वो साइड में जो है 5 into 5 वो सब मल्टीप्लाई करते हैं, पर वो नीचे वाला जो लास्ट में 1 बचता है मैम उसको करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं बेटा, उसको करने की जरूरत नहीं है। मैम अगर क्या बोलते हैं वो नीचे कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो हमें उसको फिर से करने की जरूरत नहीं होती ना। बेटा करने की जरूरत होती भी है, करना चाहिए, पर क्या आपके स्कूल में क्या बोलते हैं कि मत करो, अब ये तो प्राइम नंबर आ गया, दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर, बट वी डू।
क्योंकि प्राइम नंबर अपने टेबल में तो आता ही है ना, 3 comes in the tables of itself ना, यस मैम। so we will do। अच्छा अब मुझे बताओ ये HCF समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अब ma'am. मैं इसमें एक और नंबर ऐड करने जा रही हूँ, मैम 125। मैम हाँ जी। मैम यहाँ पे जब हमें मिला दोनों का प्राइम फैक्टर्स 5 और 25 में और 45 में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया जो दो कॉमन थे? बेटे कॉमन को मल्टीप्लाई नहीं करते, हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट वो नंबर करना है जो इन दोनों से डिवाइड होता है, तो 5 ही डिवाइड होगा ना बेटा, ओके मैम। कॉमन ही तो है, कॉमन लेते हैं कॉमन। मैम हाँ जी बेटा। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैम, तो आपका मतलब कि जो हाईएस्ट नंबर होएगा उन सब में से, जब अभी 5 इन दोनों में है तो 5 सिर्फ हाईएस्ट नंबर होएगा। यस। So you mean if there's any number with the prime factor of 6 and the other one also has 7, so it will be 7 the highest. I am not getting your point, Aisha. What you want to say exactly? I wanted to say if one prime factor number multiples are different, so the other one is also different, and one of them has the highest number, and so the other one's highest number will be the highest common factor. Aisha, you are getting wrong. सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर नहीं, हाईएस्ट के बाद कॉमन भी है, जो उनमें कॉमन हाईएस्ट नंबर है, नॉट द हाईएस्ट ओनली बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Okay, ma'am. If they both have different factors, this I will tell you afterwards in tomorrow's class I will tell, जब दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 is the HCF। Okay, ma'am. ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी कल हम MCQs करेंगे, सारे MCQs एंड ट्रू फॉल्स मैंने आपको वर्कशीट उसकी भेजी हुई है, दे आर द कोर कॉन्सेप्ट एक्चुअली। हम LCM HCF तो फाइंड आउट कर लेते हैं, बट जनरली वी डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, तो कल हम वही सीखने वाले हैं। ओके अच्छा अभी हम करते हैं जल्दी से 125 के फैक्टर्स बताएंगे मुझे सब, प्राइम फैक्टर्स। Ma'am, done. Ma'am, हाँ जी। what is prime factor? Ma'am, 5 into 5 5. into 5 into 5. 5 into 5 into 5 into 5, वेरी गुड। हाँ जी, अब मुझे बताओ HCF क्या होगा? मेरी राइटिंग, रुको मेरी राइटिंग तो थोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी है ना, ये गड़बड़ हो जाती है। अच्छा ये रेस कर दूं? Yes, ma'am. प्राइम Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रुको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं जल्दी ना। हाँ जी, PF ऑफ 25 हो गए 5 into 5, देन PF ऑफ 45 हो गए 5 into 3 into 3। अब लिख लेते हैं PF ऑफ 125, ये हो गए 5 into 5 into 5। अब बताओ HCF क्या होगा? 125. Ma'am, 5. 5 कैसे होगा? 5 बताओ। Ma'am, because 5 is the highest in all of them, and Because it's a common factor. Ma'am, 125. अच्छा 125 कैसे होगा? मैम 25। Because when we take common factors in this prime factors, 3, 5. Who is saying? जीविका? No, ma'am, sorry, it's 25. अच्छा जी 25 होगा। 25 क्यों होगा समझाओ। Ma'am, because we take the 5 3 times, and second 5 we also have to take 3 times. Ma'am, the अच्छा total, ma'am, shall I tell the HCF? So, ma'am, HCF is 5 into 5 is equal to 25. ओके बेटा नाम बताओगे एक बार अपना? Ma'am, Jivika. जीविका, मैम वो प्लस कर रहे हैं। जीविका मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? Ma'am, highest common factor. Highest common factor. Now tell me
Is there any another 5 in the prime factors of 45? No, ma'am. No, ma'am. तो हमें लेना है कॉमन. Common, if we are given 3 numbers, we have to take the common factor of all 3. We can't take common factor of 2 numbers. It will be wrong. Yes, ma'am. Okay? Ma'am, तो देखो 5 into 5. मैंने इसलिए स्पेशली I have chosen this number to clear this concept, क्योंकि बहुत बच्चे ये वाली गलती करते हैं. अब 5 into 5, 5 into 3 into 3, 5 into 5 into 5. अब ये 5 तीनों में है, 25, 45 and 125. बट ये 5 इन दोनों में है, इसमें 5 नहीं है. तो हाउ कैन वी से 25 is the highest number by which 45, 25 and 125 will be divisible? तो हम ये बोल सकते हैं कि 25 वो नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं. मैम वो तीनों में नंबर होना No, ma'am. चाहिए. हाँ जी. कॉमन अगर आपको जितने नंबर्स दिए हैं जिनके बीच में आपको HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, so you have to consider only those factors which are in those 3 numbers. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Oh. ma'am. Okay. चलो अब हम जल्दी से इसका क्वेश्चन कर लेते हैं. I have a doubt. हाँ जी, बोलो जी, क्या डाउट है? मतलब अगर 5 हम लोग को कंपलसरी है कि 5 से ही मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना ही है HCF में. मल्टीप्लिकेशन कहाँ किया जा रहा हमने? Where I have multiplied? No, I am trying to say that means we need to multiply the prime factorization. Like for example, 5 multiplied by 5 compulsory है ये करना. हाँ ज़ारा, what is the meaning of prime factorization? Prime factorization का मतलब इसके factors निकालना नहीं है. Prime factorization का जो actual मतलब होता है, it means to represent these numbers as a product of prime numbers. Ma'am, I did not understood. समझ में आया? No, ma'am. चलो मैं दोबारा से बताती हूँ. देखो, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, वेट आई वांट टू से, देखो, व्हेन वी फाइंड आउट फैक्टर, हम कभी उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते, हम कॉमा लगाते हैं, है ना? हम कॉमा क्यों लगाते हैं? हम ये बताते हैं उसमें कि ये जो नंबर्स हैं, जैसे मैं 24 की बात करूं, 24 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. हम ये बताते हैं कि ये जो नंबर्स है ना, इन सबके टेबल में 24 आता है. ठीक है, वो तो होते हैं फैक्टर्स. अब प्राइम फैक्टर्स में हम क्या बताते हैं? जैसे सपोज हमें 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालने, मैंने आपको बोला, तो यू विल टेल 2 into 2 2 into 2 into 2 into 3 means you are representing 24 in the form of product of prime numbers. इसलिए हम मल्टीप्लाई लगाते हैं. ये तुम्हारे लिए शायद थोड़ी सी हाई लेवल की बात होगी अभी, लेकिन अगर तुम समझना चाहोगे तो तुम समझ सकते हैं. हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं उसमें हम मल्टीप्लाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम एक्चुअल में उनके फैक्टर्स नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि ये जो 24 है ये कौन से प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. इसलिए हम प्राइम फैक्टर्स जब भी निकालते हैं तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में शो करते हैं. और मैम ये कंपलसरी है कि हम लोग को मतलब उसको सर्कल करना है और उसके साथ ही HCF निकालना है. नहीं, सर्कल मत करो, बट सर्कल करने से क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई हो जाता है दूर से ही, आपको गलती लगने का चांस कम होता है. मैम ठीक ये है, नहीं बोला, मतलब हम लोग को जो नंबर मतलब 5 multiply by 3 multiply by 3 हुआ, तो हम लोग मतलब वो जो 2 लास्ट के 5 थे वो तो हम लोग हाँ. ले सकते हैं, सकते नहीं ले सकते. कैसे लेंगे उनको? वो तीनों में हमें चाहिए ना 5, तभी हम लेंगे ना बेटा. हमें 3 नंबर में अलग अलग 5 चाहिए, इकट्ठे नहीं. वो तो उसी के लिए हुए ना.
वो तो उसी का प्रोडक्ट है 125 का, उसमें आप कॉमन कैसे ले लोगे? Okay, ma'am. Thank you. हाँ जी, नाउ ओपन द PDF पेज नंबर 6 फास्ट. डू फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट. फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट करो. मैंने दोबारा PDF सेंड की थी विद नंबरिंग, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो. मैम आप फिर से बता दो कि कौन सा करना हाँ है? जी, श्योर श्योर. पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट. ओके मैम. मैम फैक्टर ट्री. नो बेटा, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको HCF फाइंड आउट करना है. ओके मैम. मैम वो इसमें पेज 7 पे है क्या? 6 पे बच्चे, 6. ओके मैम. मैम पर मेरे में 7 दिखा 6 हाँ दिखा मैम वो रहा है. साइड में दिख रहा है. बेटा 6 ही लिखा हुआ है पेज पे. फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन ऑन 6th पेज. हाँ मैम दिख रहा है. Okay, do the first part. I am waiting for your answers. मैम हाँ जी मैं ना ग्रुप में नहीं हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है. बेटा, तो ग्रुप में आपका नाम क्या है? आर्या. अरे आप ग्रुप में हो तभी तो आपको बेटा लिंक मिला है क्लास का. और ग्रुप पे मैंने PDF मेरे सेंड. पापा है. बेटा वो तो मुझे नहीं पता. फिर मैं, आप अपना नंबर बाद में सेंड कर देना, मैं आपको ऐड करवा दूंगी. अभी आप नंबर नोट करो. 70 यस. 105 and 175. You have to find out the HCF of these three numbers. ओके मैम, थैंक यू. 70. मैं इतने आपके ना, जो अब वो शायद फिर आपके पापा का ही नंबर होगा. आप मुझे बाद में ना क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना नंबर, ठीक है? ओके मैम. आई विल ऐड यू इन द. ओके. Ma'am, हाँ जी. ma'am, I don't understand how to find the prime factor of 70. Why? What is the ones place digit, Aisha, of 70? 0, ma'am. Then divide it by 5 first. 2 also will be divided. क्या कह रहे हो? Ma'am, we can also divide it in 2, right? Because in 2 also. हाँ, 2 से कर लो, 2 से कर लो, no problem. Who said done? एक्सक्यूज मी मैम. Who said? डन मैम. Kritarth, you have done? मैम ऑलरेडी. Okay जी. एकाक्ष आपने कर लिया? I'm almost done. Okay जी, जल्दी करो. Ma'am, HCF answer is ma'am 35. सरगी आपने कर लिया? Ma'am, HCF answer is 30. Sargi, why you are not replying, beta? Have you done or not? Ma'am, I'm doing. Okay, जल्दी करो. एक बेटा कल से it is compulsory. You have to join the class with your name. Zoom में जब आप ज्वाइन करते हो ना, आप वहां पे एडिट कर सकते हो नेम उसी टाइम ही. ठीक है? मैम हाँ आई जी. हैव. I'm done. सरगुन said done. Okay. मैम. हाँ जी. Ma'am, I have taken out the common factor, but I didn't know how to take out the HCF because the topic is new for me. ओके जी, मैं दोबारा से बता दूंगी एक बार. प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया आपने? Yes, Ma'am, ma'am. done. अच्छा जी. Who said done? Ma'am, Divisha. दिविशा. गुड.
चलो दिविशा, मुझे 70 के प्राइम फैक्टर्स बताओ बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, it's 5 into 2 into 7. गुड। 105 के कौन बताएगा मुझे प्राइम फैक्टर्स? यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड, काइंडली अनम्यूट मत करना, सब बहुत शोर हो जाता है। आरव बताओ, कृतार्थ अभी पूछती हूँ आपसे भी। आरव। Yes, so ma'am, the prime factors of 105 are 5 into 3 into 7. वेरी गुड। हाँ जी, 175 के प्राइम फैक्टर्स कौन बताएगा? अरे एकाक्ष बताएगा। चल एकाक्ष बताइए। मैम 5 into 5 into 7. 5 into 5 into 7. ओके। Ma'am, can you please repeat the 105 because I didn't note that one. I was doing the sum. 105, 5 into 3 into 7. अच्छा कृतार्थ, यू सेड, हेशा भी पूछती हूँ, रुको। यू सेड कि you are unable to identify the HCF. Now tell me what is common in 70, 105 and 175? Ma'am, 7 and 5. Very good. So what we have to do when we have two numbers, है ना, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। Okay, ma'am. Thanks. हाँ करो, अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा। Ma'am, 35. यस, प्राइम फैक्टर्स में हम ऐसा करते हैं, जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो वहां पे डायरेक्टली हमें 35 मिल जाएगा। हम वो मेथड भी करेंगे। आयशा, लगता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो। मैम अब आगे समझ में। आ गया समझ में? Yes, अच्छा, ma'am. सबका आ गया 35 आंसर? मैम हेशा? आंसर इज Yes, ma'am. 35. Yes, आंसर इज 30. Yes, ma'am. चलो जी। हाँ जी, हाँ जी, हु सेड एक्सक्यूज मी? मैम यस मैम। मैम मैम मुझे नाम बस बोल ये दो बच्चे, नाम बोल दो बच्चे। मैम सोहन? सोहन। हाँ सोहन बोलो बेटा। यस मैम। मैम इसमें एक ही डाउट है कि मैम ये प्राइम नंबर्स में तीनों का निकालना है, तो तीनों एक ही साथ लिखना है ना मैम? तीनों एक ही साथ लिख के एक ही साथ क्या बोलते हैं फैक्टर ढूंढने हैं? हाँ, अगर यू नो दैट मेथड तो आप एक साथ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट फॉर बिगनर्स आई प्रेफर कि इंडिविजुअली आप तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालो, बिकॉज उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओके मैम। इफ यू डोंट हैव मच प्रैक्टिस यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, मैं वो मेथड भी बताऊंगी स्पेशली फॉर 6th क्लास स्टूडेंट्स, दे कैन डू। ओके ठीक है, नाउ डू वन मोर, उसके बाद फिर हम Class हाँ जी। students, 5th class students. 5th क्लास वाले बेटा इंडिविजुअली करेंगे, तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल के, इट विल बी इजी। ठीक है जी, अब एक और नंबर बोल दूं जल्दी से। यस मैम. हाँ जी, जो आपके पास तो है, बी पार्ट करो आप। जिनके पास अभी जो ग्रुप में ऐड नहीं है न्यू स्टूडेंट, आप लिखो बेटा 91, 112 एंड 49। मैं रिपीट कर रही हूं, 91, 112 and 49. You have to tell the HCF. And now I will ask by my choice to anyone about the answer. So you have to just raise hand. और अब मैं उन्हीं से पूछूंगी जो हैंड रेज नहीं करते हैं, जो कैमरा ऑन नहीं करते हैं। I will ask those students specially now. Because if you want to learn, you have to actively participate in the class. अंशरा, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? साइशा? मैम मेरा कैमरा ऑन है. मुझे तो नहीं दिख रहा। मैम नेटवर्क इशू. अच्छा जी, मैम नाउ.
दिस इज ऑल्सो कॉमन एक्सक्यूज। हाँ जी, अब दिख रहा है जी आयशा आपका। नहीं आयशा आपको नहीं बोला था मैंने, या तो मैंने गलती, मैंने अंशरा बोला था, अंशरा। हाँ जी, ज़हरा, अच्छा श्रेयांशी चैट शी है इशू। आयान, यस मैम। कैमरा ऑन करो आयान। मैम आई एम यूजिंग पीसी। हाँ तो पीसी यूज कर रहे हो तो बेटा कैमरा तो ऑन कर सकते हो। कैमरा ऑन करने में तो कोई इशू नहीं। आई डोंट हैव वेबकैम। हाँ जी, देवांशी। हाँ जी, हो गया सबका, चला यार। मैम आई कांट अंडरस्टैंड। अच्छा जी, जल्दी जल्दी करो। कृतार्थ आपका हो गया, यस पर अभी मैम। आप आंसर नहीं बताओगे कृतार्थ, यू हैव टू वेट। ओके मीनवाइल मैम। आप नेक्स्ट पार्ट कर लो, आपको होमवर्क में हेल्प मिल जाएगी, होमवर्क कम हो जाएगा। Done, ma'am. Done, ma'am. डन। Ma'am, can आरव I का say the answer? Already done every. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, can I say the answer of B part? बेटा व्हाट्स योर नेम? Anshra. अंशरा। Yes, ma'am. Ma'am, I can't understand this sum. Can you explain it, please? हाँ जी अंशरा, गुड। अंशरा मुझे बताओ 91 के 5 फैक्टर्स। Ma'am, 7 and 13. वेरी गुड। नाउ 49 के बताओ। Ma'am, 2, 2, 2 and 7. 49 के 49 49 के 7. बच्चे। Sorry, ma'am, 7 and 7. Okay, now tell me the prime factors of 1 1 2. Ma'am, 222 and 7. Good. Now then what is the SPF beta? बताओ बताओ। 1 second. 1 second. Okay. मैम हाँ जी, कोई सही मैम। मैम दिविशा। हाँ जी दिविशा बेटा। मैम हो गया। मैम मेरे को एक चीज और पूछनी थी। हाँ 7 पूछो का बेटा। डिविजिबिलिटी रूल एक बार आप बता दीजिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यस मैम। You have seen the video दिविशा? नहीं मैम, इट्स माय फर्स्ट डे हियर सो आई हैव नॉट इवन सीन। नहीं आई हैव, अच्छा मैं लिंक शेयर कर दूंगी जो पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। एंड एक बार मैं बता भी देती हूँ, और मेरी वीडियो भी है इंस्टाग्राम पे, बट फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। 7 का डिविजिबिलिटी रूल सबको याद है? Yes, ma'am. चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है? हाँ जी। Ma'am, I didn't understand the 91. 91? Understand. बेटा you know you are in which class? बोलो बेटा, you are in which class? Ma'am, I am in 5th standard. 5th स्टैंडर्ड। ओके, अभी 7 का डिविजिबिलिटी रूल सिखा रही हूँ, देन यू विल कम टू नो 91 का, तब आपको आ जाएगा करना, ठीक है? एक बार डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, हम 91 को ही एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को फिर से अच्छे से एक बार आ जाएगा। सपोज Little bit breaking for me. बेटा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, किसी के पास ब्रेक होके आ रही है या क्लियर है? No, ma'am. Ma'am, No, clear ma'am, है. Clear. ओके, सारा फिर आपके उधर कोई इशू Ma'am, होगा। clear आ रही है. But it's ओके जी, अब clear. जल्द म्यूट कर लो जल्दी से। आई एम टेलिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। For 7, what we have to do, we have to double the ones place number. Ones place number is 1, so we have to double it. बेटा म्यूट करो, म्यूट yourself everyone. वंस प्लेस के डिजिट को हमें करना होता है ट्वाइस, 2 वंजा होता है 2। फिर जो बचे हुआ नंबर है जो भी, उसमें से हम इसको कर देंगे माइनस। 9 - 2 गिव्स अस 7।
और इस रिजल्ट को हमें चेक करना होता है. इफ इट इज 0 or divisible by 7, then the number is divided by 7. Divisha, is it clear, or shall I give one more example? No, ma'am, it's clear. Thank you. कोई एक और Excuse me, बता ma'am. देती हूँ. हाँ Ma'am, जी. एक और कर देते हैं. Ma'am, हाँ, I हाँ, have found. Excuse me, ma'am. Can you explain that prime factorization sum? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. 91 के हमें प्राइम फैक्टर्स जिसको समझ नहीं आ रहे थे, अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है. तो हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वी स्टार्ट विद 2. ऑड नंबर है, 2 में नहीं आएगा. इसका जो डिजिट का सम है वो 10 है, 3 में नहीं आएगा. ऑड नंबर है, 4 में नहीं आएगा. वंस प्लेस डिजिट इज 1, 5 में भी नहीं आएगा. 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता तो 6 में भी नहीं आएगा. नाउ वी हैव कम टू 7 कि अब 7 में ये आएगा या नहीं आएगा. तो 7 का भी जब डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा तो हमने चेक किया कि 91 7 के टेबल में आएगा. एंड नाउ इफ यू नो मेंटल डिवीजन, तो आप मेंटली डिवाइड कर सकते हो. 7 1 7, वी आर लेफ्ट विद 2. 2 and 1 21. 7 into 3 gives us 21. Now we are having प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. तो 13 1 13 हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, I have found the answer. ओके, अब मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल का एक और एग्जांपल देती हूँ. एक लिटिल बिट बिगर नंबर, देन वी विल एंड द क्लास. सपोज वी हैव 146 and we have to check either this number is divisible by 7 or not. So what we will do, we will make it 446. So what we will do, first we will double this digit. 2 into 6 gives us 12. Now we have to subtract this 12 from the rest of the numbers. That is 44. 44 minus 12 gives us 32. Now tell me, क्या 32 7 के टेबल में आता है? No, ma'am. No, ma'am. No. Ma'am, So no, ma'am. 4 4 No, 6 ma'am. will not be divisible by 7. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, yes, Ma'am. yes, ma'am. Okay, Yes, then ma'am. now after ending the class, I will give you homework and I will share the old recordings. So those who have joined today can get those recordings. और homework करना कंपल्सरी है, क्योंकि अभी ये चैप्टर टुडे इज मंडे, वेडनेसडे को कंप्लीटली ओवर हो जाएगा विद योर क्वेरीज एंड डाउट्स. एंड ऑन थर्सडे आई विल टेक टेस्ट. Okay. और मेरा टेस्ट होगा, कैमरा ऑन होके होगा. जिसको नेटवर्क इशू है उसको मैं टेस्ट कराऊंगी नहीं उससे, क्योंकि मुझे कैमरा 100% ऑन चाहिए. आपकी नोटबुक मुझे दिखनी चाहिए. दैट इज कंपल्सरी, क्योंकि बिना असेसमेंट के आपको खुद ही नहीं पता लगेगा आपने कितना सीखा है. इज इट क्लियर? तो होमवर्क ध्यान से कीजिए, डाउट्स पूछिए और क्लास में भी पूरे अटेंटिव रहिए. देखिए, मैंने पहले भी बताया था पहली क्लास में, जब आप आंसर देंगे किसी क्वेश्चन का क्या होगा, 2 चीजें होंगी. या तो आंसर गलत होगा या आंसर सही होगा. यही होगा ना, या और कुछ हो सकता है? एक बार अपने अनम्यूट करो. Yes, Ma'am, ma'am. या तो सही होगा. दो ही Yes, चीजें ma'am. होंगी ना, या तो सही या गलत. तीसरा तो कुछ नहीं होगा ना. अगर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा. म्यूट कर दो, म्यूट. अगर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस यू आर लर्निंग. अगर सही नहीं होगा तो आपको सिखा दिया जाएगा. अगर दोनों ही रिजल्ट्स में आपका फायदा है ना. अगर सही होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि मैंने अच्छे से किया. अगर नहीं होगा तो मैं आपको दोबारा सिखा दूंगी. इसलिए आंसर दिया करो, आंसर देने से मत घबराया कर. ठीक है? Yes, पक्का? ma'am. Yes, सबने okay. पार्टिसिपेट करना है क्लास में.
जब आप पार्टिसिपेट करोगे आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी और यू विल एंजॉय इन द क्लास, नहीं तो आपको क्लास बोरिंग लगेगी। ठीक है, अब सब होमवर्क करेंगे पक्का? Yes, ma'am. Yes, sir. मैम चलो। होमवर्क क्या है वो रिपीट कर सकते हो? होमवर्क बेटा मैं अभी सेंड करूंगी ग्रुप में। ओके मैम। ठीक है, सबने होमवर्क करना है, ऑनेस्टली करना है। ओके, बाय बाय Bye, मैम। ma'am. थैंक यू।